Good morning students, this is Amit Tiwari, your English teacher, and today I am going to start a very important topic of English grammar, which is tense. So in English there are three tenses. First one is present tense, the second is past tense and the third is future tense. आप सबको पता ही होगा. And in today's video we will try to cover up the present tense and its different kinds. So let us start. Students, observe these four sentences. The first one is I do my homework, and in this sentence or this sentence indicates an action which is done on daily basis. This action is done on daily basis, but the time of action is not known or not definite. इस सेंटेंस का जो हिंदी में मीनिंग है वो ये है कि मैं अपना होमवर्क करता हूं, यानी कि जो सब्जेक्ट है इसमें वो अपना होमवर्क करता है, लेकिन कब करता है ये नहीं पता है. द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट नोन, द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट डेफिनेट. वो कभी भी कर सकता है, सुबह भी कर सकता है, दोपहर में भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है. सो हियर द टाइम इज नॉट नोन और टाइम इज नॉट डेफिनेट. And in second sentence, I am doing my homework. The action is in continuous phase, means the action has not been completed yet. And in third sentence, I have done my homework, means this sentence indicates that an action which has started in the past but completed in present, just completed in present time. And in fourth sentence, I have been doing my homework, means a part of the action is completed already, but the remaining is in continuous phase. So we have seen four different type of sentences, and the first sentence indicates the present indefinite tense because the time is not definite. The first sentence indicates that it is in present indefinite tense. And the second sentence indicates that the action is in continuous phase. That's why this sentence is in present continuous tense. And the third one, the action has started in past but just now completed in the present time. That's why this sentence is in present perfect tense. And the fourth one, the action that has been started and a part of it has already been completed and the rest is in continuous phase. So that's why this sentence is in present perfect continuous tense. So as per these sentences, there are four kinds of present tense. The first one is present indefinite tense, the second one is present continuous tense, the third one is
प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी बताऊंगा आप लोगों को। पहला सेंटेंस जो है वो ये बता रहा है कि काम हो रहा है, काम होता है, डेली होता है, बट कब होता है उसका टाइम निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक्शन स्टार्ट हो गया है और वो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस में कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है या परफेक्टेड हुआ है या परफेक्शन आया है काम में, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एंड फोर्थ वन, काम पहले स्टार्ट हो गया था, कुछ पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है बट अभी भी काम जो है हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हर एक काइंड का अपना एक सिंटैक्स होता है, सेंटेंस का एक कंस्ट्रक्ट होता है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। Now students, we will see the different rules which we follow to construct a sentence in present indefinite tense. So let us start. सबसे पहले आप एक टेबल को देखिए, इस टेबल में आप देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल लिखा हुआ है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, मीन्स कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हम लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाते हैं, ये हम देखते हैं। तो जब सिंगुलर में है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है यानी कि आई है, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर यू है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट, इसके साथ डज लगाया है। और अगर यहाँ पे नाउन होता, सिंगुलर नाउन, तब भी हम डज लगाते। प्लूरल की बात कर लेते हैं। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल वी है, इसके साथ डू लगाया है। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल यू है, इसके साथ डू लगाया है। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन दे या प्लूरल नाउन्स हैं, इनके साथ डू लगाया। ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब का। इसके बाद अब मेन वर्ब्स में किस तरीके से चेंजेस आते हैं इसको भी हम देखेंगे। इसके लिए आप एक कंस्ट्रक्ट देखिए, यहाँ पे सेंटेंसेस का सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता ही होता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सिंटैक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस और ईएस ऐड करते हैं। और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, यानी कि यस या ईएस ऐड नहीं किया जाता। ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट बताया ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है। पॉजिटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने क्या
वर्ब में यस या ईएस जोड़ा है? नहीं जोड़ा है। और सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पे देखिए थर्ड पर्सन में जब थर्ड पर्सन के साथ जब हमने वर्ब यूज किया है, मेन वर्ब, ही गोज टू मार्केट में, गो जो है मेन वर्ब है, इसमें हमने यस या ईएस जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, जब सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या ईएस जोड़ा गया, यानी कि ही क्या है? सिंगुलर नंबर है। जब सिंगुलर नंबर होगा और थर्ड पर्सन होगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस हम ऐड कर देंगे। थर्ड एग्जांपल देखिए, बॉयज प्ले द गेम। अब बॉयज क्या है? बॉयज जो है, पहले तो बॉय नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? प्लूरल है। बॉयज यस लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल नंबर है। तो जब प्लूरल नंबर होगा और ये थर्ड पर्सन है तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, लेकिन उसमें यस या ईएस नहीं ऐड करेंगे। यहां पे ये सिंटेक्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन प्लूरल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है और थर्ड पर्सन है। और फोर्थ एग्जांपल देखिए, दे गो टू द हॉस्पिटल। दे गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, थर्ड पर्सन और प्लूरल है, इस वजह से इसमें क्या है? यस या ईएस नहीं जोड़ा गया है। जो वर्ब है गो, इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल से हमने देखा कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक बार फिर मैं समराइज कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके नंबर्स का ध्यान देना होता है, क्या वो प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं। इसके बाद हमें देखना होता है कि वो प्रोनाउन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन है। ठीक, तो अगर फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ये एक स्पेशल केस है। आई के साथ हम वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। दो आई इज अ सिंगुलर नंबर, फिर भी हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, उसमें भी हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर लें तो थर्ड पर्सन आते ही मेन वर्ब में यस या ईएस ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि हमने यहां पे किया है, ही गोज टू मार्केट। अच्छा, अब हम प्लूरल नंबर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन को देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में प्लूरल नंबर वी होगा। वी के साथ हम वर्ब में कभी भी यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका सिंटैक्स है वो यही कह रहा है। अभी अब चूंकि यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन लिखा है, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पर्सन में लिखूं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तब भी हम वर्ब में यस या ईएस नहीं ऐड करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल है, तो हम वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। और अगर प्लूरल नाउन है तब भी हम यस या ईएस वर्ब में नहीं जोड़ेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, डू और डज।